Mm. गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रहा है क्या? यस। Yes, I am audible. Yes. Yes, yes. Yes, synthesis of benzene from benzoin by the oxidation reaction. Now, before starting the discussion, how we will convert the benzoin to benzene, just tell me anyone what is the oxidation and reduction? Yes, anyone? आवाज आ रही है मेरी? यस, आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ, तो आवाज आ रही है तो थोड़ा रिस्पांस दो तो समझ में आएगा ना, नहीं तो बस मैं बड़बड़ कर रहा हूँ बस। Oxidation is a increasing oxidizing agent. हाँ, ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, एग्जैक्टली है ना। तो इसके अपोजिट में ही क्या रहेगा रिडक्शन का? द डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, है ना। दिस इज द डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। The same we can also explain in terms of hydrogen atom. Oxidation is nothing but the decreasing the number of hydrogen atom and reduction is the increasing number, है ना। But how you will explain the oxidation and reduction in terms of the electron? सर ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, And reduction is the Gain गेन of ऑफ इलेक्ट्रॉन। gain electron, है ना। gain of electron, this is the oxidation and reduction, है टोन ना। पे हाँ, the same depending on the nature of the group or compound, they are also classified into the oxidizing agent and reducing agent, है ना। oxidizing agent क्या करते हैं? that accept the electron, and that's why they are called as the oxidizing agent, because accepting the electron that cause the ऑक्सीडेशन ऑफ द अनदर स्पीसीज, है ना। वो दूसरे जो उसके सामने वाले स्पीसीज को, अपोजिट स्पीसीज को क्या करता है? वो ऑक्सीडाइज करता है, बिकॉज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या रहता है? द स्पीसीज दैट डोनेट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। वो क्या करता है? दैट रिड्यूसेस द अनदर स्पीसीज, है ना। तो द कन्वर्जन ऑफ द बेंजीन फ्रॉम बेंजोइन इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। व्हाट हैपन इन दैट? द बेंजोइन इज कन्वर्टेड टू द बेंजीन, है ना। Benzene is nothing but the aromatic ketones that containing the two aryl group, two carbonyl group, है ना। Just see the reaction, general reaction of the conversion of benzoin to benzene. दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, what happen in that? The benzoin देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, this containing the two benzene ring with the two carbon atom in between the two benzene ring, one of carbon atom containing the C double bond O, that is a
carbonyl group and second one carbon containing the hydroxyl as a functional group, है ना. So when this treat with the oxidizing agent like the nitric acid, concentrated nitric acid, है ना, ये concentrated nitric acid क्या है, the play the role of oxidizing agent, है ना. Oxidizing agent means क्या करेंगे ये, that accept the pair of electron, that accept the pair of electron from the benzoin. तो benzoin को क्या कर रहा है, ये oxidize कर दे रहा है by accepting the pair electron from the benzoin and convert it into the benzyl group, है ना. This reaction actually carried out in a round bottom flask by just taking the required quantity of benzoin plus nitric acid, है ना. The reaction may be carried out in a some acetic acid भी add करते हैं इसको and treating the compound for 1 to 2 hours, है ना. That's why convert the benzoin to the benzyl group, है ना. Why the reaction is not proceed to the nitration reaction, though we use the nitric acid, concentrated nitric acid while conversion of the benzoin to benzyl. देखो इसके पहले आपने बेंजीन अपने सिलेबस में पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है क्या यहाँ पर नाइट्रेशन? यस. हाँ, दीपाली चौहान कौन है तो Adnan. Yes, sir. As already we discussed in the electrophilic aromatic substitution reaction in the first and second unit, is this reaction possible here while treating the benzoin with a concentrated nitric acid? So why it proceed only the benzene means it affect the COH group only, but this NO2 group not attack to the benzene ring. Is it possible? सर एनवायरमेंट एसिडिक है इसकी वजह से शायद. हाँ, तो पॉसिबल है कि नाइट्रेशन रिएक्शन ये NO2 ग्रुप ये बेंजीन रिंग को अटैच हो सकता है क्या? हाँ, बराबर बोले आपने, और थोड़ा सा प्रिसाइज आंसर दो आपका. बस एनीवन? आपके स्क्रीन पे देखो क्या नजर आ रहा है आपको, द बेंजोइन इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव द बेंजील. आ रहा है आपकी स्क्रीन पे नजर आपको? Yes, sir. हाँ, तो इज इट पॉसिबल दिस नाइट्रो ग्रुप आउट ऑफ द नाइट्रिक एसिड अटैक टू एनी वन ऑफ द बेंजीन रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ अगेन बाय प्रोडक्ट मींस बेंजील प्लस नाइट्रोबेंजील ग्रुप, कोई नाइट्रो ग्रुप अटैच है इसको, पॉसिबल है क्या पॉसिबल? सदनान अहमद बोलो. See, while we convert or while we proceed the oxidation reaction of benzoin to corresponding benzyl, है ना, so this reaction proceed by treating the benzoin with a nitric acid, concentrated nitric acid, it will give the benzyl, है ना, but the reaction is not carried out in presence of the sulfuric acid, है ना. नाइट्रेशन के लिए क्या जरूरी रहता है? यस, सल्फ्यूरिक एसिड. H2SO4. हाँ, H2SO4. तो यहाँ पे H2SO4 है क्या, है यहाँ पे प्रेजेंट? नहीं ले रहे हम, है ना, इसलिए नाइट्रेशन हम पॉसिबल है क्या? नहीं. नो. हाँ, if the same reaction is carried out in presence of the sulfuric acid plus nitric acid, अब नाइट्रिक एसिड तो है ही और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी किसी ने ऐड किया, तो along with the oxidation of this COH group, है ना, ये देखो ये COH ग्रुप दिख रहा है बेंजोइन में, बेंजोइन में जो COH ग्रुप दिख रहा है, तो इसको भी तो ऑक्सीडाइज करेंगे ही, वो पॉसिबिलिटी है. प्लस नाइट्रेशन ऑफ दिस बेंजीन आल्सो ऑकर, ये जो दो बेंजीन रिंग है बेंजोइन के, यहाँ पर भी नाइट्रेशन हो जाएगा वहां पर, है ना. बट इन दिस सिचुएशन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अब्सेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, है ना. गॉट द पॉइंट?
सर अगर इसमें H2SO4 होता और नाइट्रेशन होता तो फिर बेंजीन पे कौन सी पोजीशन पे नाइट्रेशन होता? देखो ना, आप भी इससे जज कर सकते हैं। देखो अभी देखो, ये अभी ये बेंजीन का ग्रुप करेंगे हम राइट साइड का, है ना। तो यहाँ पर देखो कार्बन अटैच है, कार्बन एटम को क्या है, OH ग्रुप है ना, OH ग्रुप है। और यहाँ पे क्या है, तो OH ग्रुप क्या करेंगे यहाँ पर से, बोलो, विड्रॉ करेगा। तो फिर ये कौन सा हो गया, मेटा डायरेक्टर हो गया। इवन ये जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये भी कौन सा है, मेटा डायरेक्टर। तो इसके मेटा पोजीशन पे मेटा डायरेक्टर है ना, तो फिर इसके मेटा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप अटैच होगा, है ना। ये कौन सा इसमें आ जाएगा, ये अर्थो मेटा, अर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर में आ जाएंगे, है ना। तो ये मेटा डायरेक्टर है दोनों भी ग्रुप। समझ में आया आपके? यस सर। हाँ, तो वो थ्योरी उसको है ना अप्लाई करने का। बाय द चांस इफ इट इज undergo the electrophilic substitution reaction, just determine the nature of already substituent. If the benzene ring is not substituted, then there is a no issue the coming electrophile attack to any one of the group, है ना, क्योंकि सभी का all the 6 carbon atoms are equivalent, है ना। तो that's why the electrophile attack to any one of the carbon atom. But if the benzene ring or aromatic system is already substituted, so the next substitution is based on a nature of a substituent that already एग्जिस्ट, है ना। तो देखो यहाँ पे जो दोनों भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या मेटा डायरेक्टर है, इसलिए इफ इट इज अंडरगो द नाइट्रेशन, तो नेक्स्ट ग्रुप में भी अटैक, डेफिनेटली अटैक टू द मेटा पोजीशन, है ना। तो ये जनरल रिएक्शन समझ में आ गया आपके, है ना। एंड दिस रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ द बेंजोइन टू बेंजीन, है ना। तो एक्चुअली व्हाट हैपन, लैब में ऑलरेडी बेंजोइन है ना प्रेजेंट ही रहता है, अवेलेबल है हमारे लैब में, इसलिए नो नीड टू सिंथेसाइज द बेंजोइन, दैट जस्ट डायरेक्टली वे द बेंजोइन व्हाट एवर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी सेड इन अ प्रोसीजर। वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी बेंजोइन लेना है आपको, फिर उसमें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करना है, एंड देन प्रोसीड व्हाट एवर द, जस्ट मेक द नेसेसरी और अरेंजमेंट and make the necessary condition that mentioned in a procedure and proceed the reaction, है ना। finally it will give the benzene, है ना। if benzoin कभी नहीं रहता तो कैसे प्रिपेयर करेंगे इसको हम, if the benzoin is not present, तो what happen, the benzaldehyde क्या रहता है, ये अल्डिहाइड है ना, का एरोमेटिक अल्डिहाइड है। बेंजाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद थायामाइन, थायामाइन क्या रहता है, विटामिन B1 है ना। इसको जब ट्रीट करेंगे एट रूम टेम्परेचर फॉर 24 आवर्स, व्हेन वी ट्रीट द बेंजाल्डिहाइड विद द थायामाइन फॉर 24 आवर्स, जिस रूम टेम्परेचर पे इसको क्या करना है, इंटरमिक्स करना है बेंजाल्डिहाइड प्लस थायामाइन कोई भी बीकर में इसमें इसको, और जस्ट प्रोसीड द रिएक्शन एट अ रूम टेम्परेचर फॉर 24 hours. So what happened in that, the benzaldehyde is converted to the benzoin. This is one of the method for synthesis of benzoin. Otherwise you can also synthesize the benzoin by the different method also, है ना। ये out of the one method, है ना। तो बेंजोइन तो हमको सिंथेसाइज नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी प्रैक्टिकल हमारे लैब में अवेलेबल है, दैट्स व्हाई benzoin is just directly treat with the concentrated nitric acid that give the benzene, है ना। this is the mechanism point. next slide देखो, आपके स्क्रीन पे आ रही होंगी नजर आपको, this is the mechanism, है ना। as already we discussed, सर हाँ बोलो। सर बेंजोइन सॉलिड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में? बेंजाइन सॉलिड फॉर्म में, बेंजोइन सॉलिड फॉर्म में, नाइट्रिक एसिड लिक्विड फॉर्म में, है ना। तो इसमें क्या करेंगे यार, सॉल्वेंट भी ऐड कर सकते हैं इसको। एक क्या करेंगे, जब इसको हम हीट करेंगे ना, तो वो मेल्ट हो जाएगा और वो कंप्लीटली इंटरमिक्स होगा नाइट्रिक एसिड के साथ में, और क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, है ना। देखो ऑलरेडी इन आप है ना, जब फर्स्ट स्लाइड देखा होगा या आपका सिलेबस देखा होगा, तो उसमें भी मेंशन किया है बेंजील फ्रॉम बेंजोइन बाय द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। दिस कन्वर्जन ऑफ बेंजोइन टू बेंजील रिएक्शन इन्वॉल्व, विच रिएक्शन इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, सुने आ रहा है सभी को? यस सर। हाँ, तो आपकी जब प्रैक्टिकल एग्जाम होती है तो उसमें सिनॉप्सिस रहता है ना। यस सर। हाँ, तो सिनॉप्सिस में कैसे क्वेश्चन रहता है, which reaction, which mechanism involved during the conversion of benzoin to benzene, just mention the mechanism, name of mechanism and write down the mechanism, है ना। हाँ, तो ऑक्सीडेशन आपको क्या लिखना पड़ेगा वहां पे, ऑक्सीडेशन लिखना पड़ेगा। और ये जो मैकेनिज्म आपके स्क्रीन पे नजर आ रही है, दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे नजर आ रहा है? Yes, sir.
हाँ तो वो मैकेनिज्म आपको लिखना है ना। वालेकुम सर, क्या क्या बोलते देशमुख साहब, बहुत दिनों के बाद में। ओके, है क्या अभी 10-15 मिनट? तो मैं बस मेरा ना ये प्रैक्टिकल, हाँ मैं मेरे पास में मोबाइल नहीं है, मैं यहाँ पर ही 15-20 आधे घंटे के बाद में। हाँ हाँ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, है ना। तो ऑक्सीडेशन देखो, हियर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्ले द रोल ऑफ एक्सेप्टिंग द, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, Yes, sir. Yes, हाँ, sir. ऑक्सीडाइजिंग नाइट्रिक एसिड एक्ट एज अ Oxidizing ऑक्सीडाइजिंग agent एजेंट, और which ऑक्सीडाइजिंग accepts विच electron from एक्सेप्ट OH. द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली करेक्ट है ना। Electron. तो ये देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इट एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड between an oxygen atom and nitrogen atom, accept the pair of electron from the oxygen atom and form the new sigma covalent bond between oxygen atom and nitrogen atom, है ना। as the result of sigma bond both the electron contributed by the oxygen atom, that's why this oxygen atom getting the positive charge, क्या कर रहा है वो, पॉजिटिव चार्ज ले रहा है ना। और यहाँ पर ऑलरेडी नाइट्रोजन एटम पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस पाई बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम एंड नाइट्रोजन एटम ब्रेक एंड बोथ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू दिस ऑक्सीजन एटम एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस वन इज द इंटरमीडिएट, फ्रॉम दिस इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ अ more stable बेंजील ग्रुप बाय रिमूविंग द वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर से क्या हो रहा है, यहाँ पर से फिर ये हाइड्रोजन जो यहाँ पर का हाइड्रोजन एटम है, दैट ट्रांसफर फ्रॉम दिस ऑक्सीजन एटम टू द this oxygen atom of a nitric acid, है ना। formation of this intermediate species, in that the nitrogen atom having the 2 hydroxyl group, और ये क्या रहता है, unstable species है ना। यहाँ पर से क्या होता है, 2 acetal group बोलते हैं उसको, है ना। तो यहाँ पर से one of the oxygen that is NO2 group क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है along with the water molecule and formation of a corresponding benzene, है ना। along with this also the evolved the nitrogen oxide gas, है ना। देखिए जो सब में लास्ट में दिख रहा है आपके रिएक्शन में NO2, ये क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। तो ड्यूरिंग व्हाट हैपन व्हेन वी ट्रीट द बेंजील, व्हेन वी ट्रीट द बेंजील विद नाइट्रिक एसिड, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, here the loss of the water molecule also along with the nitrogen oxide। तो जैसे ही हम हीट करते हैं बेंजील को विद नाइट्रिक एसिड, तो इमीडिएटली क्या होता है, उसमें से गैस इवॉल्व होती है, कौन सी गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड की। दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड हैविंग द ब्राउनिश कलर, ब्राउनिश कलर की क्या होती है, इसमें से गैस इवॉल्व होती है इसमें से। तो कंटिन्यू द रिएक्शन up to the there is no appearance of the brownish color from the reaction mixture। इसको कब तक हीट करना है हमको, अप्रोक्सीमेटली जब तक उसमें से ना ब्राउनिश कलर की जो गैस रहती है, जब तक है ना सीज्ड स्टॉप नहीं होती, जब तक उसको क्या करना है, हीट करना है। once there is no evolve the brownish gas of a nitrogen oxide means the reaction is completed, means the benzoin is converted to the corresponding benzene। आ गया समझ में आपके? सर वो कलर का फिर से बताइए ना। क्या होता है जब ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, तो द नाइट्रिक एसिड प्ले एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय एक्सेप्टिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ अ unstable intermediate, from this unstable intermediate loss of a water molecule along with the nitrogen oxide। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या रहती है, गैस होती है। तो इधर जब गैस इवॉल्व होती है ना, तो दिस गैस हैविंग द ब्राउनिश कलर, ये गैस का कैसा कलर रहता है, ब्राउनिश। हाँ ब्राउन कलर रहता है, डार्क ब्राउन कलर रहता है। और एग यॉक रहता है, कि एग यॉक की कैसी स्मेल आती है,
है ना, तो वो एग यॉक के जैसी स्मेल आती है ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की स्मेल रहती है। तो हमको है ना विजुअल रिएक्शन नहीं है, मींस रिएक्शन कब कंप्लीट हुई थी, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन, we can't predict that the reaction is completed or not completed, है ना, क्योंकि जो visible नहीं रहती, but this reaction is a visible reaction. What happen when we treat the benzoin plus nitric acid, so what happen, the oxidation takes place and formation of a benzene along with the evolution of a नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। तो जैसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस इवोल्यूशन कम बंद हो जाती है, टोटली स्टॉप होती है, तो मींस रिएक्शन इज कंप्लीटेड। और कभी कंटिन्यूअसली आ रही है तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन अभी प्रोसीड है, मींस whole 100% of the benzoin is not converted to the benzene. Got my point? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो एंड पॉइंट आपको समझ में आएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है ना, क्योंकि जब भी ब्राउन कलर है ना स्टॉप हो गया रिएक्शन में से आने का, तो वो अपने हमको समझ में आ जाएंगे कि रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट आ गई। तो असेंबली कैसी रहेंगी इसकी, एक आरबीएफ रहेगा, और आरबीएफ को जस्ट टेक द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ बेंजोइन इनटू दैट, ऐड द नाइट्रिक एसिड एंड जस्ट डायरेक्टली हीट ऑन अ फ्लास्क, डायरेक्टली हीट ऑन अ बंसेन बर्नर, है ना। पर हम प्रिकॉशनरी क्या करते हैं, उसको रिफ्लक्स कंडेंसर लगाते हैं विदाउट पासिंग द वाटर, क्योंकि हमको इसमें कंडेंसेशन करना है क्या, यस, आ रही है आवाज? यस सर। हाँ, हमको रिफ्लक्स में फिर अपन वाटर पास करेंगे क्या, नो सर। नहीं करेंगे। पर रिफ्लक्स क्यों लगाएंगे हम, क्योंकि जब वो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, तो वो जब वो बंसेन बर्नर का वो क्या होता है, हमारे एकदम चेस्ट के लेवल में आ जाता है वो, और जैसी गैस इवॉल्व होती है ना, तो डायरेक्टली इनहेल हो जाएंगी, वो डायरेक्टली इंटर्ड इनटू द नोज, है ना। दैट्स व्हाई वी अटैच द रिफ्लक्स कंडेंसर। रिफ्लक्स कंडेंसर की वजह से क्या होता है, वो 1.5-2 क्या हो जाती है, 2 फुट ऊपर गैस निकल जाती है, मीन्स अबव अवर हेड लेवल, है ना, तो वो हमको इनहेल नहीं होता है, प्रिकॉशनरी, है ना। तो दिस इज द प्रोसीजर, प्रोसीजर हम देखेंगे अभी नेक्स्ट, है ना, ये मैकेनिज्म है इसका। मैकेनिज्म देखो, इसकी स्क्रीन की ना स्क्रीनशॉट ले लो आप, लिया आपने स्क्रीनशॉट ये मैकेनिज्म का? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, अब ये देखो, ये प्रोसीजर, ये प्रोसीजर का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। ये देखो क्या है यहाँ पर, प्रोसीजर क्या है, हीट द मिक्सचर of 4 gram of benzoin and 14 ml of concentrated nitric acid in a steam bath, on a steam bath, है ना। यहाँ पे स्टीम बाथ बोला है, डायरेक्टली क्या बोला, तो डायरेक्टली वाटर बाथ लेना है हमको, और उसमें भी हीट कर सकते हैं, या इंस्टेड ऑफ हीटिंग ऑन अ वाटर बाथ डायरेक्टली भी हीट किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, या वाटर बाथ में ही हीट कर लेंगे उसको, है ना, कर लेना उसको। Just take the 4 gram of benzoin, 14 ml of concentrated nitric acid and heat on a boiling water bath for 11 minutes, है ना। कैरी आउट द रिएक्शन अंडर द हुड, है ना, मीन स्टीम हुड जो, या जो द रिएक्शन इज यूजुअली कैरीड आउट इन स्टीम एग्जॉस्ट, जो एग्जॉस्ट रहता है हमारा, एग्जॉस्ट में कैरीड आउट करते हैं बिकॉज द इवोल्यूशन ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। वंस द रिएक्शन इज कंप्लीट, ऐड, जब 11 मिनट बोला यहाँ पे, तो एक्चुअली 11 मिनट नहीं लगते उसको, ज्यादा लगते हैं उसको, है ना, मोर देन 30 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि वी कैरीड आउट द रिएक्शन ऑन अ स्मॉल स्केल, क्योंकि हमें ना कितना 4 ग्राम दिया है, मेंशन किया है यहाँ पे प्रोसीजर में, पर हमें यूजुअली 1 ग्राम या 2 ग्राम से स्टार्ट करते, तो हमने 2 ग्राम बेंजोइन लिया, फिर उसमें क्या करेंगे हम, 7 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, और उसको हीट करेंगे अप टू द nitrogen oxide gas is not ceases, है ना, up to not stop to the whatever the nitrogen oxide gas, है ना। After the reaction is completed, just add the approximate quantity of water into the reaction mixture, और उसको क्या करना है, cool to the room temperature by just shaking, और fill the mixture, है ना। तो जैसे ही उसको वाटर ऐड करेंगे, तो उसमें से क्या हो जाएगा, क्रूड बेंजील फॉर्म हो जाएगा, येलो कलर क्रूड बेंजील फॉर्म हो जाएगा उसमें। आ रहा, आवाज आ रहा है आपको? हेलो। यस सर। हाँ, तो जो बेंजील फॉर्म हो रहा है, जैसा ये पूरा प्रोसीजर हो जाएगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, क्रूड बेंजोइल, बेंजील फॉर्म हो जाएगा। ये क्रूड बेंजील का हमको क्या करना है फिर, बोलो।
यस प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर हाँ, उसको क्या करना है, रिक्रिस्टलाइज करना है, या उसके रिक्रिस्टलाइजेशन के भी पहले क्या करना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लेना है। मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है ना कैसे कैरीड आउट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट? यस, आपको आता है ना मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिटरमाइन करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बाय यूजिंग द विच ट्यूब? यस, सर वो प्रोडक्ट कैपिलरी ट्यूब में डालते हैं, फिर हीट करके देखते हैं थर्मामीटर लगा के। हाँ, वो थाइल्स ट्यूब बोलते हैं। वो ट्यूब को क्या बोलते हैं? देखो वो जो एंग बी शेप में रहती है वो ट्यूब, देखे होंगे ना आपने? यस सर। हाँ, उसको बी शेप में रहती है, उसको थाइल्स ट्यूब बोलते हैं। उसमें उसको क्या करते हैं, जस्ट टेक द अवर बेंजील इन अ कैपिलरी, फील द कैपिलरी विद बेंजील, और देन अटैच द विद दिस फील्ड कैपिलरी विद अ थर्मोमीटर इन सच ए वे दैट जो प्रोडक्ट की लेवल और आपके जो मर्क्यूरी की लेवल है ना, मैच होने को ना। समझ में आ रहा है? उसको अच्छे से टाई कर दिया, फिर उसको जस्ट इमर्स इनटू द थाइल्स ट्यूब इन सच ए वे दैट द अपर ओपन पोर्शन ऑफ द कैपिलरी अबव द दैट लिक्विड। कौन सा लिक्विड रहता है उसमें? पानी रहता है ना? क्या रहता है नो उसमें? सर, इसमें नो वाटर नहीं सर, रहता है। क्या रहता है फिर बोलो? हाँ, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। नहीं 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 नहीं, राइट आंसर के लिए ना 2 मार्क्स रहेंगे। जब भी हमारी एग्जाम होंगी ना तो मुझे रिमाइंड कर देना कि 2 मार्क्स दिया था सर ने। यस, फॉर द करेक्ट आंसर 2 मार्क्स। एनीवन? पैराफिन। यस, पैराफिन। कौन है, किसने बोला वो? रोल नंबर 7। हाँ, रोल नंबर 7। क्यों रहता है पैराफिन, बोलो? ओ याद नहीं सर। पैराफिन का टेम्परेचर कितना रहता है बॉइलिंग पॉइंट का? मोर देन 400 to 500 डिग्री सेल्सियस रहता है ना? और यूजुअली हमारे जितने भी मेल्टिंग पॉइंट हम प्रोडक्ट हैंडल करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है ना लेस देन 200 300 डिग्री सेल्सियस रहता है। दैट्स व्हाई वी यूज द पैराफिन। अदरवाइज क्या हो जाएगा, हमने वाटर लिया और हमारे कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट है 130, तो क्या हो जाएगा, जब वाटर ही पहले से बॉईल होना चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो फिर हमारा कंपाउंड मेल्ट हुआ है या नहीं हुआ वो समझ में आएगा क्या हमको? नो। हाँ, that's why we use the liquid paraffin in a Thales tube. You should remember which liquid we use in the Thales tube. Liquid paraffin, because of the high temperature, high boiling point है ना, that's why we use the liquid paraffin. अभी देखो, कभी फिर अब जैसे ही हमको मेल्टिंग पॉइंट मालूम हो गया क्रूड बेंजील का, तो क्रॉस चेक दिस मेल्टिंग पॉइंट विथ थेरोटिकल मेल्टिंग पॉइंट। जो इसका ना प्योर कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है रिपोर्टेड रहता है ना, तो उसके साथ मैच करेंगे। किसके साथ मैच करेंगे? जो रिपोर्टेड है थेरोटिकली। आया समझ में आपको? यस। हाँ, यस सर। if the melting point of a compound whatever we synthesize is matches with a theoretical, for example 95 डिग्री सेल्सियस है ना, theoretical है बोलो तो प्योर कंपाउंड का, प्योर बेंजील एसिड हैविंग द 95 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट, और हमने जो कंपाउंड सिंथेसाइज किया है इसका भी 95 है, तो मींस क्या है, कंपाउंड क्या है, प्योर है। कंपाउंड क्या है वो? यस, प्योर कंपाउंड है। इफ द कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट इज 97 डिग्री सेल्सियस है या 90 डिग्री सेल्सियस है, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड प्योर है? नो। नहीं, वो सिचुएशन में कंपाउंड इम्प्योर है, बिकॉज माइट बी द इम्प्योरिटी इंक्रीजेस द टेम्परेचर, और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट और डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट, है ना? तो उस टाइम में फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो क्रूड कंपाउंड का क्या करना पड़ेगा, उसको प्योर करने के लिए कौन सी प्रोसीजर करेंगे हम? रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, है ना? देखो, दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, है ना? 10 मिनट ही बाकी है, तो 10 मिनट ही बाकी है ना, तो उसको क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइज करेंगे। करेक्ट आंसर है ना, उसको क्या करेंगे हम, रिक्रिस्टलाइज करेंगे। उसको क्या करेंगे हम? यस, हेलो, यस सर। क्या करेंगे उसको, प्योर, उसको प्यूरिफाई कैसे करेंगे कंपाउंड को? हाँ, कैसा प्यूरिफाई करेंगे उसको?
रिक्रिस्टलाइजेशन में। तो रिक्रिस्टलाइजेशन में यहाँ पर क्या करना है हमको, इथेनॉल लेना है, 10 ml इथेनॉल लेना है, उसको डिसॉल्व करना है, फिर उसको फिल्टर करना है और उसको क्या करना है, क्रिस्टलाइज करना है। देन वी विल गॉट द प्योर बेंजीन। और उसके बाद में डबल से क्या करना है, इसको मेल्टिंग पॉइंट करना है। क्या करना है उसको, डबल से उसका मेल्टिंग पॉइंट लेना है। आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। और फिर उसके मिलते, उसका जैसे रिक्रिस्टलाइज हो गया ना, तो उसको पियर कंपाउंड को सेपरेट करना है। और डबल से उसका क्या करना है हमको, फिर क्या करेंगे, डबल से उसका मेल्टिंग पॉइंट लेंगे। क्या करेंगे उसको, Melting point. और ये कंडीशन में फिर जो रिक्रिस्टलाइज प्रोडक्ट का डबल से मेल्टिंग पॉइंट लेंगे, तो दैट शुड बी मैचेस विद द स्टैंडर्ड वन मेल्टिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट से मैच करना है। स्टिल इफ द मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट मैचेस विद द स्टैंडर्ड वन, तो डबल से उसको क्या करना पड़ेगा हमको, क्रिस्टलाइज करने का है। तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस कब तक करना है हमको, जब तक है ना हमारा मेल्टिंग पॉइंट है ना स्टैंडर्ड Standard से melting. मैच नहीं होता है, जब तक क्या करना है उसको रिक्रिस्टलाइज करना है। रिक्रिस्टलाइजेशन का बस एक ही डिसएडवांटेज क्या है, इसमें हमारा यील्ड कम हो जाता है। क्या हो जाता है, यील्ड कम होता है, क्योंकि इसमें से क्या होता है, इंप्यूरिटीज बार बार कम होने की वजह से क्या होता है, इसका यील्ड कम होता है। दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन, है ना। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज व्हाट हैपन, वी सिंथेसाइज द बेंजीन फ्रॉम, किससे सिंथेसाइज किया हमने, Oxidizing is नहीं क्या, सिंथेसिस ऑफ बेंजीन फ्रॉम बेंजोइन, किससे सिंथेसिस किया हमने, Benzene. बेंजोइन से सिंथेसाइज किया ना उसको, बेंजोइन से। yes. हाँ, तो what happen most of the time this benzoin is not 100% converted to the benzene। क्या होता है बहुत से टाइम में ना, benzoin is not converted to the benzene। तो how to identify the unconverted benzoin, तो इसको कैसा करना है हमको, पार्ट 2 जो भी हमने सिंथेसाइज किया है बेंजीन, इसको क्या करना है, डिसॉल्व करना है इथेनॉल में, 95% इथेनॉल में डिसॉल्व करना है। और इसमें 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है। कितना परसेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, 10%. 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड, अप्रोक्सीमेटली क्वांटिटी जैसा 1 to 2 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है 10%। इफ द बेंजोइन इज प्रेजेंट, कभी है ना आपके बेंजीन में, इफ अनकन्वर्टेड बेंजोइन इज प्रेजेंट इन योर कन्वर्टेड बेंजीन, तो दैट सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड टू द पर्पलिश कलर। वो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा वो सॉल्यूशन का, Purplish. purplish means benzoin is not 100% converted to the benzene, है ना। पर कभी है ना आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड भी किया 10% और पर्पल कलर नहीं आ रहा है, तो दैट इंडिकेट दैट मींस 100% benzoin is converted to the Benzene. बेंजीन। तो इसी के साथ में आपका है ना प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ही प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा और हम इसके आगे भी जा सकते हैं। जैसे हमने जो भी कंपाउंड सिंथेसिस किया, इसका हम है ना आईआर डेटा देखेंगे, उसका मास का डेटा देख सकते हैं, या फिर उसके बाद में उसका टीएलसी देखेंगे। टीएलसी का नाम सुना होगा ना आपने, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी देख सुना होगा ना आपने। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसका क्रोमेटोग्राफी भी कैसे करेंगे, जो आपने सिंथेसाइज किया बेंजीन और बेंजोइन को क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, एक ऑलरेडी है ना रेडीमेड प्लेट लेंगे, एक एल्यूमिनियम प्लेट लेंगे, ऑन दैट द सिलिका जेल इज कोटेड, या अदरवाइज एक पेपर लेंगे, वॉटमैन पेपर लेंगे, उस पर क्या करेंगे, बेंजीन डिसॉल्व करेंगे और बेंजोइन डिसॉल्व करेंगे सेपरेट सॉल्यूशन में, और दोनों का भी एक स्पॉट कर देंगे वो पेपर पे, और वो पेपर को डीप करेंगे कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जो भी मेंशन करते हैं उसका, तो उसमें से क्या होगा, सॉल्वेंट रन होगा एट अ पर्टिकुलर हाइट। फिर वो हाइट पे जो भी जितना है ना रन करेंगे आपका बेंजोइल और बेंजीन सेपरेट सेपरेट आने को होना, या बेंजोइन का आरएफ फैक्टर भी दिया रहता है, रिटेंशन फैक्टर, उससे मैच करेंगे। तो दिस आल्सो क्रॉस चेक, दैट क्रॉस चेक whether the benzoin is converted to the benzene or not, है ना। समझ में आ रहा है आपको, आ गया समझ में। Yes, sir. हाँ Yes, तो sir. हाँ तो ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल आप है ना आपके रिकॉर्ड बुक में अच्छे से लिख लो। सब में पहले एम लिखेंगे आप, फिर उसके बाद में लिखेंगे रिक्वायरमेंट में केमिकल डाल दो, फिर उसके बाद में
एपरेटस डाल दो, फिर उसके बाद में जो प्रोसीजर का आपने, फिर उसके बाद में प्रोसीजर लिख लो, फिर उसके बाद में जो ब्लैंक पेज है वहां पर आप क्या लिखेंगे, ये रिएक्शन लिख लेंगे, है ना? समझ में आ सर रहा है? एम और रेफरेंस क्या डालना है? एम तो यही डालो ना, सिंथेसिस ऑफ बेंजीन फ्रॉम बेंजोइन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना? और रेफरेंस? रेफरेंस की जगह ना छोड़ दो ब्लैंक ऐसे। सर सेकंड स्लाइड दिखाओ ना एक बार। ये क्या, यही स्लाइड क्या? यस सर, थर्ड वन, सॉरी। मैकेनिज्म की, यस सर। हाँ हाँ, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो, और ये देखो, और ये भी लिख लो, एम लिख लो, एम लिखिए आपने, एम की भी स्लाइड ले लो, है ना? सर चौथी स्लाइड बताओ ना सर, हाँ, फोर्थ वाली स्लाइड। या अदरवाइज मैं इसको व्हाट्सअप कर दूंगा आपको, हाँ क्या बोले यस सर? सर। व्हाट्सअप कर दूंगा मैं, व्हाट्सअप पे से लिख लेने का, और रिजल्ट में ठीक है लिखना ठीक है। Yes, sir. प्रैक्टिकल कैरिड आउट वर्चुअली बोल के लिख देने का उसमें, जब भी हमारा प्रैक्टिकल होगा तो जब हम इसका रिजल्ट लिखेंगे, हाँ? ओके, थैंक यू। सर वो मार्केट से बाय करनी है ना प्रैक्टिकल बुक? प्रैक्टिकल बुक के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया है ना आपको, सर दिए थे आपको? नो सर। आप क्या करो, कोई भी प्रैक्टिकल बुक है ना मार्केट से परचेज कर लो 200 पेजेस की, हाँ? यस सर। और फिर हम क्या करेंगे, जो जो सर्टिफिकेट का पेज रहता है ना, तो उसका व्हाट्सअप करेंगे, तो प्रिंट आउट ले लेने का, और एट द टाइम ऑफ सबमिशन क्या करो आप, उसको है ना, उसको स्टिक कर देने का और सबमिट करने का। आप कोई भी रिकॉर्ड बुक है ना मार्केट से परचेज कर सकते हैं, है ना? ठीक है सर। एक रिक्वायरमेंट क्या है उसका, फ्रंट पे जो प्रिंट रहता है और बैक साइड क्या रहता है, ब्लैंक रहता है ना? वो तो फॉर्मेट मालूम ही होगा यस आप लोगों को। यस सर। चलेगा कुछ डिफिकल्टी रही तो सर ये सेकंड प्रैक्टिकल होगा ना, एक यासिर सर ने भी लिया है। ये नहीं, इस यासर सर ने क्रिस्टलाइजेशन और स्टीम डिस्टिलेशन दोनों भी लिया है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो दोनों को भी क्या करो, अलग अलग लिखो। पहला एम क्या रहेगा, टू परफॉर्म द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द गिवन प्रोडक्ट, हाँ? हाँ सर। और दूसरा लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्टीम डिस्टिलेशन, वो पूरा डेमो लिखो, क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन का प्रैक्टिकल होता नहीं अपने पास में, हमें ना कन्वेंशनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो कन्वेंशनल डिस्टिलेशन हम परफॉर्म करेंगे, बट लिखेंगे हमें ना स्टीम डिस्टिलेशन डेमोन्स्ट्रेशन। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। और थर्ड प्रैक्टिकल लिखेंगे आप, ये आज का कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू बेंजोइन, और जो डेट में प्रैक्टिकल हो रहे हैं वही डेट लिखो आप। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, स्टिल इफ यू हैविंग एनी डिफिकल्टी जस्ट आस्क द रिस्पेक्टिव टीचर, हाँ? सर ये व्हाट्सअप कर दीजिए स्लाइड। बिल्कुल करेंगे, हाँ? ठीक है। थैंक यू।